इशू है, एक के पास इशू नहीं है, हमारे पास इशू ज़्यादा हो गया है। और सबसे पहली बात तो देखिए, बहुत सारे केंद्र सरकार की योजनाएं सिलीगुड़ी में चल रही हैं। जैसे बालासन वाला सड़क बन रहा है, उसको 1 साल और लगेगा, उसको पूरा करना है। एयरपोर्ट का जो है टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, शिलान्यास होगा चुनाव के बाद, उसको 2-2.5 साल बनने में लगेंगे, उस काम को पूरा करना है। सिलीगुड़ी में पीने की पानी और सीवरेज ड्रेनेज का बहुत बड़ा समस्या है। 750 करोड़ रुपए मिले हैं, उसका कुछ अभी टेंडर हुआ है, तो वो पीने की पानी की सीवरेज ड्रेनेज की व्यवस्था करनी है। बड़ा प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनना है 4000 करोड़ रुपए की, यानी ओदलाबाड़ी से लेकर के सेवक, सुकना, पानीगड्ढा, नक्सलबाड़ी, माटीगाड़ा होते हुए खोरीबारी, घोषपुकुर और बागडोरा के पीछे से होते हुए फुलबारी होते हुए सीधा जो है ये ओदलाबाड़ी तक जाएगा। यानी 180 किलोमीटर चारों तरफ जब रिंग रोड बनेगी, आप सोचिए कितना बड़ा विकास का काम होगा। और एक जो है इस 5 साल के अंदर में बन के वो भी तैयार हो जाएगा। गोरखपुर से लेके सिलीगुड़ी तक हाईवे आ रहा है। तो ये सब कुछ काम है, अधूरे काम है, जिनको पूरा करना है। दूसरा, आगे आने वाले समय में जो मेरा फोकस एरिया रहेगा, कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, उसके अलावा जो है एक तो स्वास्थ्य। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में कोई मरीज वहाँ पे ठीक होने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि कोई आदमी जाता है तो वो वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए वहाँ जाने से मरीज डरता है। और दीदी का स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो नहीं चलता है। अब रुक जाओ ना, गोपाल लामा जी कुछ नहीं करेंगे, बहुत सीधे आदमी है। और दीदी का स्वास्थ्य साथी का कार्ड, स्वास्थ्य खराब है, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है। और जो है यहाँ पे स्कूल और शिक्षा, हायर एजुकेशन और केंद्रीय सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट वगैरह का स्थापना करना है। तो ऐसे बड़े बड़े सपने देखे हैं, वो सब पूरे करेंगे। कुल मिला के सिलीगुड़ी 5 साल हो गए, 5 साल 10 साल में भारत में नंबर 1 बनेगा। हेलो, निर्वाचन পাহাড়ে আলাদা আছে, এখানে আলাদা আছে। পাহাড়ে বলছে ওরা 11 জন জজ কি পিপিএস, এগুলো তো আমরা রাজ্য সরকার থেকে পাঠানো হয়েছে, ওরা দিল্লিতে আটকা আছে। তো হ্যাঁ, আর একদম 100% ঘটবে। কতটা আশাবাদী? হ্যাঁ, 100% আশাবাদী। বিপক্ষকে কত নাম্বার দিচ্ছে? আমি ও নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না, আমার বেস্ট করে যাচ্ছি আর আমরা আমাদের দিক থেকে আমার বেস্ট করছি। আচ্ছা, দিল্লির কুর্সিতে কি এবার পালা বদল হতে চলেছে? সেগুলো আমি কি করে বলবো, এখন আমার আন্দাজা তো করা যাবে না, এগুলোতে আশা করা যায় হবে। আর ভোটে কি মনে হচ্ছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনো ব্যাপার রয়েছে নাকি? না, সে ওদের ব্যাপার, আমাদের কিছু, আমাদের কোনো গোষ্ঠী, ওদের ব্যাপার ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। আপনি প্রচারে কেমন সাড়া পাচ্ছেন? প্রচারে ভালো সাড়া পাচ্ছি, যেখানে যাচ্ছি আমাদের তৃণমূলী নেতৃত্ববৃন্দ শিলিগুড়িতে থাকছে, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট থেকে নিয়ে সম্পূর্ণ আমাদের কোঅপারেট করছে। আর কর্পোরেশনের সম্পূর্ণ কাউন্সিলররা, মেয়র অবধি আমাকে কোঅপারেশন করছে। আর রুরাল এরিয়াতে পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যরা, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা, মহকুমা পরিষদ সভাধিপতি অবধি আমার সঙ্গে কোঅপারেশন করছে। হ্যালো, নির্বাচন পাহাড়ে আলাদা আছে, এখানে আলাদা আছে। পাহাড়ে বলছে ওরা 11 জন জজ কি পিপিএস, এগুলো তো আমরা রাজ্য সরকার থেকে পাঠানো হয়েছে, ওরা দিল্লিতে আটকা আছে। তো হ্যাঁ, আর একদম 100% ঘটবে। কতটা আশাবাদী? হ্যাঁ, 100% আশাবাদী। বিপক্ষকে কত নাম্বার দিচ্ছে? আমি ও নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না, আমার বেস্ট করে যাচ্ছি আর আমরা আমাদের দিক থেকে আমার বেস্ট করছি। আচ্ছা, দিল্লির কুর্সিতে কি এবার পালা বদল হতে চলেছে? সেগুলো আমি কি করে বলবো, এখন আমার আন্দাজা তো করা যাবে না, এগুলোতে আশা করা যায় হবে। আর ভোটে কি মনে হচ্ছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনো ব্যাপার রয়েছে নাকি? না, সে ওদের ব্যাপার, আমাদের কিছু, আমাদের কোনো গোষ্ঠী, ওদের ব্যাপার ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। আপনি প্রচারে কেমন সাড়া পাচ্ছেন? প্রচারে ভালো সাড়া পাচ্ছি, যেখানে যাচ্ছি আমাদের তৃণমূলী নেতৃত্ববৃন্দ শিলিগুড়িতে থাকছে, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট থেকে নিয়ে সম্পূর্ণ আমাদের কোঅপারেট করছে। আর কর্পোরেশনের সম্পূর্ণ কাউন্সিলররা, মেয়র অবধি আমাকে কোঅপারেশন করছে। আর রুরাল এরিয়াতে পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যরা, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা, মহকুমা পরিষদ সভাধিপতি অবধি আমার সঙ্গে कोऑपरेशन করছে। इस बार दार्जिलिंग परिवर्तन चाहती है। दार्जिलिंग पिछले 3 टर्म बीजेपी को वोट किया उन्होंने, और उसके बाद हमें और कुछ नहीं, दार्जिलिंग को सिर्फ ठगी मिली और दार्जिलिंग में सिर्फ झूठ के पुलिंदे बांधे गए। और इस समय दार्जिलिंग के लोग 2 ध्रुवों के बीच में पिसे हुए हैं। एक तरफ है अत्याचार और भ्रष्टाचार का राजनीति,
और दूसरी तरफ है झूठ की राजनीति। इन दोनों से परेशान है लोग, इन दोनों को हटाना चाहते हैं और उसी विकल्प को लेकर हम लोग कांग्रेस की तरफ से आए हैं और यहाँ एक स्वच्छ राजनीति, एक सच्चा राजनीति का हम यहाँ शुरुआत करेंगे। इस बार परिवर्तन बिल्कुल होगा क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है और आप जानते हैं कि गणतंत्र में जनता जो चाहती है वही हमेशा पूरा होता है। हम बिल्कुल आशावादी नहीं, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीतेंगे क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं और वो परिवर्तन कांग्रेस दे सकती है और कांग्रेस के साथ हमारे जो लेफ्ट अलायंस है और हमरो पार्टी है और अन्य बहुत सारे संस्थाएं हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, उन सभी का साथ हमें मिला हुआ है। सब मिलकर हम जरूर जीतेंगे। वो अंक देना मेरा काम नहीं है, वो जनता उनको अंक देगी। हमें ये पता है कि जनता मुद्दों को समझती है और मुद्दों पे ये वोट होगा और जो ये मुद्दे जहाँ पिछले 15 साल में भाजपा के टेन्योर में जो मुद्दा कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, उन सभी मुद्दों को जनता आगे बढ़ाना चाहती है और हम पूरा आश्वस्त हैं कि जनता हमें 100% समर्थन देगी। इस बार दार्जिलिंग परिवर्तन चाहती है। दार्जिलिंग पिछले 3 टर्म बीजेपी को वोट किया उन्होंने और उसके बाद हमें और कुछ नहीं, दार्जिलिंग को सिर्फ ठगी मिली और दार्जिलिंग में सिर्फ झूठ के पुलिंदे बांधे गए और इस समय दार्जिलिंग के लोग 2 ध्रुवों के बीच में पिसे हुए हैं। एक तरफ है अत्याचार और भ्रष्टाचार का राजनीति और दूसरी तरफ है झूठ की राजनीति। इन दोनों से परेशान है लोग, इन दोनों को हटाना चाहते हैं और उसी विकल्प को लेकर हम लोग कांग्रेस की तरफ से आए हैं और यहाँ एक स्वच्छ राजनीति, एक सच्चा राजनीति का हम यहाँ शुरुआत करेंगे। इस बार परिवर्तन बिल्कुल होगा क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है और आप जानते हैं कि गणतंत्र में जनता जो चाहती है वही हमेशा पूरा होता है। हम बिल्कुल आशावादी नहीं, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीतेंगे क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं और वो परिवर्तन कांग्रेस दे सकती है और कांग्रेस के साथ हमारे जो लेफ्ट अलायंस है और हमरो पार्टी है और अन्य बहुत सारे संस्थाएं हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, उन सभी का साथ हमें मिला हुआ है। सब मिलकर हम जरूर जीतेंगे। वो अंक देना मेरा काम नहीं है, वो जनता उनको अंक देगी। हमें ये पता है कि जनता मुद्दों को समझती है और मुद्दों पे ये वोट होगा और जो ये मुद्दे जहाँ पिछले 15 साल में भाजपा के टेन्योर में जो मुद्दा कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, उन सभी मुद्दों को जनता आगे बढ़ाना चाहती है और हम पूरा आश्वस्त हैं कि जनता हमें 100% समर्थन देगी। इशू है, एक के पास इशू नहीं है, हमारे पास इशू ज़्यादा हो गया है। और सबसे पहली बात तो देखिए, बहुत सारे केंद्र सरकार की योजनाएं सिलीगुड़ी में चल रही हैं। जैसे बालासन वाला सड़क बन रहा है, उसको 1 साल और लगेगा, उसको पूरा करना है। एयरपोर्ट का जो है टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, शिलान्यास होगा चुनाव के बाद, उसको 2-2.5 साल बनने में लगेंगे, उस काम को पूरा करना है। सिलीगुड़ी में पीने की पानी और सीवरेज ड्रेनेज का बहुत बड़ा समस्या है। 750 करोड़ रुपए मिले हैं, उसका कुछ अभी टेंडर हुआ है, तो वो पीने की पानी की, सीवरेज ड्रेनेज की व्यवस्था करनी है। बड़ा प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनना है 4000 करोड़ रुपए की, यानी ओदलाबाड़ी से लेकर के सेवक, शुकना, पानीगड्ढा, नक्सलबाड़ी, माटीगाड़ा होते हुए खोरीबारी, घोषपुकुर और बागडोरा के पीछे से होते हुए फुलबारी होते हुए सीधा जो है ये ओदलाबाड़ी तक जाएगा। यानी 180 किलोमीटर चारों तरफ जब रिंग रोड बनेगी, आप सोचिए कितना बड़ा विकास का काम होगा। और एक जो है इस 5 साल के अंदर में बन के वो भी तैयार हो जाएगा। गोरखपुर से लेके सिलीगुड़ी तक हाईवे आ रहा है। तो ये सब कुछ काम है, अधूरे काम है, जिनको पूरा करना है। दूसरा, आगे आने वाले समय में जो मेरा फोकस एरिया रहेगा, कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, उसके अलावा जो है एक तो स्वास्थ्य। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में कोई मरीज वहाँ पे ठीक होने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि कोई आदमी जाता है तो वो वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए वहाँ जाने से मरीज डरता है। और दीदी का स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो नहीं चलता है। अब रुक जाओ ना, गोपाल लामा जी कुछ नहीं करेंगे, बहुत सीधे आदमी है। और दीदी का स्वास्थ्य साथी का कार्ड, स्वास्थ्य खराब है, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है। और जो है यहाँ पे स्कूल और शिक्षा, हायर एजुकेशन और केंद्रीय सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट वगैरह का स्थापना करना है। तो ऐसे बड़े बड़े सपने देखे हैं, वो सब पूरे करेंगे। कुल मिला के सिलीगुड़ी 5 साल हो गए, 5 साल 10 साल में भारत में नंबर 1 बनेगा।